Hi students, in our last lecture we have studied theoretical part of differentiation, one's theorem and the formula for finding derivative of composite function. Now today we will see problem based on them. On screen you can see standard formulas of differentiation and simple sums of differentiation. Now we see here derivative of composite function. For finding derivative of composite function, basically there are two methods which already we have discussed in the last class. If y is function of u and u is function of x, then dy by dx can be found as dy by du into du by dx. Its theorem also we have studied. Next method is if y is function of f of g of x, then dy by dx is f dash of g of x into g dash of x. This formula is also important. I will explain you at the time of problem. Now differentiate exercise 1.1, unsolved problem we are solving here. Solve problems you can solve from the textbook directly. Y, first one, y is x cube minus 2x minus 1 raised to 5. In this we solve it by method 1 by using this formula. So here first of all you have to assume this bracket function as u, that is u is x cube minus 2x minus 1. Then what will be y? Y will be u raised to 5. In this case y is function of u and u is function of x. So you can use this formula here, dy by dx is dy by du into du by dx. So to use this formula we have to find both these derivatives, that is we have to find dy by du and du by dx. So for finding dy by du, first of all we assume y is u raised to 5. We differentiate it with respect to u. So dy by du is the du of u raised to 5, that is 5 u raised to 4. Now u is what? X cube minus 2x minus 1. We differentiate it with respect to x. So du by dx is the dx of x cube minus 2x minus 1, that is 3x square minus 2. So what we will get? This is our 3x square. So we put these values in this equation number 1. Put these values in this equation number 1. So dy by du is 5 u raised to 4 and du by dx is 3x square minus 2. Okay, we put the value of u here, that is 5 into x cube minus 2x minus 1 raised to 4 into 3x square minus 2. So dy by dx is 5 3x square minus 2 into x cube minus 2x minus 1 raised to 4. Okay, by first method we got this answer. Now the second method means use this formula. So using this formula, so y is x cube minus 2x minus 1 raised to 5, differentiated with respect to x, and dy by dx is d dx of x cube minus 2x minus 1 raised to 5. Now here we have to apply this formula. So first of all you have to differentiate the outside function, that is something raised to 5 wala function. So x raised to n wala formula use karna hai. So x raised to n is n x raised to n minus 1. So it is dy by dx is 5 into x cube minus 2x minus 1 raised to n minus 1, that is 4, into d dx of bracket, that is d dx of x cube minus 2x minus 1. So dy by dx is 5x cube minus 2x minus 1 raised to 4 into x cube का derivative 3x square minus 2x का derivative minus 1 and constant minus 1 का derivative 0. So both the methods will give you same answer. Okay, understood this? Mostly we use the second method to solve the problems. Which one? This one is easy. The second problem same है, solve करके दिया हुआ आपको. Next problem, इसमें under root है. This problem, y is under root of x square plus under root of x square plus 1. इसमें आपको differentiate करना है with respect to x. हम लोग ये वाला formula use करके ही इसको solve करेंगे सेकेंड वाले मेथड से. सो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे. व्हाट इज अंडर डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे रूट एक्स की जगह पूरा टर्म है, एक्स अलजेब्रिक कोई फंक्शन है, वो पूरा फंक्शन एज इट इज लिखेंगे. 1/2 रूट में का पूरा फंक्शन लिख लिया इनटू डी डी एक्स ऑफ रूट में जो भी फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है पूरा फंक्शन. सो dy by dx is 1/2 under root of x square plus under root of x square plus 1 into d dx of this inside function x square plus under root of x square plus 1. ये फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिख लिया. अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, फिर से रूट वाला फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज़ 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये x नहीं है, x की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ये फंक्शन एज इट इज़ रख लिया, ये इसको भी लिख लिया। अब ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ पे देखिए ये 2x एंड 2 जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो गया, सो व्हाट विल गेट dy by dx इज 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका हम लोगों ने ये एलसीएम फाइंड कर लिया, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लिया, तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर लिया, तो न्यूमरेटर में 2x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक भी आंसर फाइंड करें तो भी चलेगा, ये x कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर से और ये टर्म हमने लिखी है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। 2 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये फर्स्ट 1 मार्क ये स्टेप पे होता है और 1 मार्क ये स्टेप पे। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें देखिए y इज अंडर रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 1 रेस टू 5, इसमें भी ये रूट वाला ही फंक्शन है, लेकिन अंदर में आपका लास्ट प्रॉब्लम में आपका रूट वाला फंक्शन था, अलजेब्रिक फंक्शन था जिसमें रूट है, यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही डिफरेंस है, प्रोसीजर वही है। नेक्स्ट सम, इसमें आपका देखिए ये भी आपका इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आउटसाइड में, अंदर में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, तो प्रोसीजर वही है, पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज जाना है आपको, ठीक है। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 6 वाला सम है, तो इसमें 5 रेस टू एक्स क्यूब प्लस 3, ये इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है। तो इसमें पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो आपका क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ ये वाला टर्म, ये जो भी ब्रैकेट में जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज साइन क्यूब एक्स प्लस 3। अब पहले दो टर्म एज इट इज़ रहेंगे, ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स इज 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसमें भी दो फंक्शन है, एक क्यूब है और दूसरा साइन है, ठीक है। तो हमने 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, derivative of constant is 0. So the final answer is dy by dx is 5 sin cube x plus 3 log of 5 into 3 sin square x cos x. Okay. Next sum, y is equal to 25 log of sec x to the base 5 minus 16 log of tan x to the base 4. अब ये इस टाइप के सम में पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा y को, यू कांट डिफ्रेंशिएट इट डायरेक्टली, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे लॉगरिथम के, m log of n to the base a is log of m n raised to m to the base a and a raised to log of x to the base a is x, ये वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो इसके लिए देखिए आपको 25 और 16 ये स्क्वायर्स है, 25 का स्क्वायर है 5 स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है 4 स्क्वायर है, ओके तो वो हम लोग लिख लेंगे, 5 स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे 4 स्क्वायर लिख लेंगे, बचे हुए टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हाँ ये क्या आ गया 5 रेस टू 2 लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5। अब ये जो रेस टू 5 रेस टू 2 लॉग ऑफ है, तो ये 2 आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सेक स्क्वायर कर सकते हैं इसको, जो मल्टीप्लायर 2 है लॉग के साथ वो सेक का रेस टू आ सकता है, यहाँ पे वैसे ही है, ये लॉग के साथ जो पहले मल्टीप्लायर 2 जो है वो ऊपर tan स्क्वायर आ सकता है, तो इट कैन रिटर्न एज y इज इक्वल टू 5 log ऑफ सेक स्क्वायर टू द बेस 5 माइनस 4 log ऑफ tan स्क्वायर टू द बेस 4। नाउ वील अप्लाई दिस फॉर्मूला, a log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x, सो ये बेस एंड ये एक्सपोनेंट सेम है यहाँ पे भी, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर आया सेक स्क्वायर एक्स, इसका आया माइनस tan स्क्वायर एक्स। So you know the trigonometric identity, sec square x minus tan square x is 1. So y is 1. Now differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to 0.
as derivative of constant is 0. So this is your final answer. Okay, now next one is third exercise 1.1 third sum, थर्ड वाले एग्जाम्पल्स. तो इसमें आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल के टाइप के एग्जाम्पल्स है. यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल है. प्रोडक्ट रूल, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स. वो वाला फॉर्मूला लगा के ये सम को सॉल्व करना है. सिंपल सम है, जस्ट कंसिस्टेंसी रखना है. प्रॉपरली आपको सब स्टेप्स सिस्टमेटिकली लिखते जाना है, सॉल्व करते जाना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 3x. अब इसमें ध्यान देना है कि इसको डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करने के लिए टर्म को पहले सेपरेटली हमने कंसिडर कर लिया और फिर हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस कॉस ऑफ 3x से मल्टीप्लाई कर लिया. तो क्या हो गया हमारी टर्म? अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ऑफ 3x इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 3x. तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 3x स्क्वायर. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बची क्या टर्म? 1 माइनस कॉस ऑफ 3x. उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ऑफ 3x, 1 प्लस कॉस ऑफ 3x, 1 माइनस कॉस ऑफ 3x. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी. a माइनस बी ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 3x. यू नो दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया साइन स्क्वायर ऑफ 3x, साइन स्क्वायर ऑफ 3x एंड अंडर रूट दोनों कैंसिल होके बचेगा साइन ऑफ 3x. अब देखिए टर्म फिर से न्यूमरेटर क्वोशिएंट रूल यूज़ करना पड़ेगा अगर ये फॉर्म में रखा तो. फिर से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. 1 अपॉन साइन ऑफ 3x इज कोसेक ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ 3x इज कॉट ऑफ 3x. अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है. अब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक ऑफ 3x माइनस कॉट ऑफ 3x. अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स इज डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कोसेक ऑफ 3x माइनस कॉट ऑफ 3x. अब log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x. सो इंस्टेड ऑफ x वी आर हैविंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट. सो राइट डाउन द होल ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट. तो हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लिखते हैं. डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज, डेरिवेटिव जब भी को आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है. यू नो दिस. डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ 3x इज माइनस कोसेक ऑफ 3x कॉट ऑफ 3x. एंड 3x है तो इसका डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 माइनस कॉट ऑफ 3x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ 3x इंटू 3. तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ 3x इंटू 3. सो यहाँ से हम लोग 3 कोसेक ऑफ 3x कॉमन निकालते हैं. सो व्हाट विल लेफ्ट? कोसेक ऑफ, तो क्या बचेगा हमारा इनसाइड ब्रैकेट में? cosec of 3x minus cot of 3x. So cosec of 3x minus cot of 3x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया. So what is left? cosec of 3x. Okay. So that is our final answer. Next, assume that f dash of 3 is minus 1, g dash of 2 is 5, g of 2 is 3 and y is equal to f of g of x. Then find out dy by dx at x is equal to 2. तो हम लोग को गिवन लिख लिया. y is f of g of x, then dy by dx क्या होगा? by formula dy by dx is f dash of g of x into g dash of x. फॉर्मूला है हमारे पास. हमको क्या फाइंड करना है? लेकिन dy by dx at x is equal to 2 फाइंड करना है. तो जहाँ भी x है वहाँ पे पुट कर दो 2. अब हमारे पास g of 2 की वैल्यू है 3, g dash of 2 की वैल्यू है 5, वो पुट कर लिया. ठीक है, यहाँ पे पुट कर लिया. अब f dash of 3 is what? -1 and ये 5 as it is. So -1 multiplied by 5 is -5. So dy by dx at x is equal to 2 is 5. Okay. Now similar sum is one more sum is solved for you. आप देख लेना. So this completes our derivative of composite function के लिए जो सॉल्व की हुई एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट. आपको उसमें के जो टिपिकल सम्स है, कुछ सम्स फॉर एग्जांपल सॉल्व करके दिए हैं, तो ये पीडीएफ मैं आपको दूंगी और आपको एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए सम सॉल्व करने के लिए मैं उसका भी आपको पीडीएफ दूंगी, सो दैट जिनके पास भी बुक नहीं है दे कैन सॉल्व. सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट टॉपिक, composite derivative of composite function. In the next class we will continue with next topic. Thank you.